Hi, so I hope you already have Eclipse installed by now, right? So in case you are facing some issue, you should stop right now. Just make sure that your Eclipse is set up correctly. So if you need help, you can go to the discussion forum. You can get a help from there as well. Okay, so in case you do have Eclipse set up correctly, so you should be able to see a window which is currently a welcome window. This is a window which opens up when you open Eclipse for first time, right? Don't worry about this. You can just close this window. You don't have to do anything for this. You can just close this off. Okay, great. So now you can see, now we have this is a basic setup that Eclipse shows. So there are few windows that are opening that are opened here, right? So देख लेंगे धीरे धीरे क्या किस विंडो का क्या यूज है क्या नहीं है, थोड़े टाइम में हमें क्लियर हो जाएगा सब कुछ. सो इफ यू लुक है, दिस इज आवर पैकेज एक्सप्लोरर. ठीक है, ये हमारी कंसोल विंडो है. थोड़े टाइम में देख लेंगे अगर तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है कि इनको कैसे हम हाउ कैन वी गेट दिस विंडोज इन Eclipse टू ओपन अप. ठीक है, ओके. सो फॉर अस टू स्टार्ट राइटिंग कोड इन जावा, ठीक है, जावा तो कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू राइट वन फाइल and you can compile that and it'll run perfectly fine. ठीक है, कोई इशू नहीं है, absolutely fine. So but Eclipse basically wants कि हम इसको थोड़ा और structured तरीके से करें. देखो अब by the end of the course, during this whole course, हम लोग मिलके कम से कम 150-200 programs लिख रहे होंगे, right? So if you put all of that in one folder, it's going to be really messy. So instead what Eclipse is suggesting us to do is, so why don't you create proper folders and work within those folders? So Eclipse wants that you create projects. So these projects can be for different topics. And within each project, what we try and do is we maintain our code in a proper manner. Okay. So to write any kind of code in Eclipse, the first step will be that we will go to File, New, and we'll choose New Java project. Okay. सो कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट का नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को. सो फॉर नाउ आई एम कॉलिंग इट लेक्चर 1. ओके, लेक्चर 1. सो फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. तुम्हें और कुछ चूज करने की जरूरत नहीं है. जस्ट चूज लेक्चर, जस्ट गिव योर प्रोजेक्ट नेम एंड यू कैन फिनिश इट. सो एज सुन एज यू डू दैट, in your package explorer you will see a lecture 1 project. In case you cannot see the package explorer, it's very easy. You can just go to window. Within window you can go to show view, and within show view you will see an option of package explorer. So click on that and you will get your package explorer window. Okay, now within this project, this is just an empty folder for you. Okay, so all the code that you want to write will go inside this project. Within this project there is this src folder, and we'll be writing all our code inside the src folder. So whatever we're going to write, we're going to write inside src. Okay, सो ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, हमें अपनी पहली फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर अपना जावा कोड लिखना चाहते हैं. सो ठीक है, SRC पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे. क्या करना है हमें एक नई फाइल चाहिए जिसके अंदर हम अपना जावा कोड लिखना चाहते हैं. सो इफ़ यू लुक एट दी ऑल दी ऑप्शंस है, दिस इज वन ऑप्शन दैट लुक्स लाइक अ परफेक्ट वे टू स्टार्ट. इट सेज यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल. We do want to create a new file, but whenever you want to create a new Java file, we will actually choose a class. Instead of choosing a file, we'll choose that we want to create a new class. So class क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए प्लीज जस्ट डू इट, प्लीज अग्री विद मी. क्लास चूज कर लेते हैं. ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल. जब वो पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे देख लेंगे कि क्लास क्या होता है. ठीक है, सो अभी के लिए लेट्स चूज अ क्लास. हमें इसको नाम देना होगा. So let's call it hello world. ठीक है, इसका नाम hello world रख देते हैं. Why? Because the first file that I want to create, it's going to be a very simple program. It's just going to print hello world to the user. कुछ भी नहीं होगा. मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, वो सिर्फ hello world प्रिंट कर देगा और यूजर को दिख जाएगा वो. Okay, so let's not worry about anything else. Let's just finish it here. So it has created hello world.java for us. So I did not say .java, I just said hello world. So when you say hello world, it's automatically going to create a file for you, hello world.java. Okay, it already has some code written for you within this folder, within this file. We will use this as it is. Okay, ठीक है. So I hope सबने
फ्लो चार्ट की क्लास देख लिए। सो फ्लो चार्ट्स में क्या होता है, फ्लो चार्ट में हमें एक स्टार्ट ब्लॉक चाहिए होता है। स्टार्ट ब्लॉक का क्या यूज होता है कि मैं जब एक फ्लो चार्ट को देखूं तो कहां से पढ़ना शुरू करूंगा मैं, व्हाट इज द राइट प्लेस जहां से आई कैन स्टार्ट लुकिंग एट माई फ्लो चार्ट। एग्जैक्टली वैसे ही हमें जावा के अंदर भी एक स्टार्ट ब्लॉक चाहिए, हमें एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए जहां से हम शुरू करके अपना कोड शुरू करेंगे। ठीक है, सो वो जो स्टार्ट ब्लॉक है वो ऐसा कुछ दिखाई देता है, हमें ये लिखना होगा। ठीक है, सो आई नो काफ़ी सारा कुछ लिख दिया मैंने फॉर जस्ट अ स्टार्ट ब्लॉक। Don't worry about it. It's basically just some syntax which we will understand very very well as soon as we get to functions. So अभी के लिए again please just understand, like just try to understand कि अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे as time comes. So अभी के लिए basically ये हमारा एक start block है। क्या लिखा है हमने, public static void main and bracket के अंदर हमने लिखा है string args and square brackets। ये हमारा स्टार्ट ब्लॉक है। सो जैसे ही तुम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करोगे इसके ऊपर कुछ भी लिखा हो, ठीक है, सिस्टम वहां से स्टार्ट नहीं करेगा। कहां से स्टार्ट करेगा, इट विल कम टू लाइन नंबर 8 एंड यहां से तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, ऊपर वाली चीजें नहीं एग्जीक्यूट होंगी, पहले लाइन नंबर 8 एग्जीक्यूट होगी। ओके, एवरीबॉडी ओके विद दिस? चलो, सो यहां पर हमें अब अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है हमें, सिर्फ हमें इतना काम करना है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, यूजर को हेलो वर्ल्ड दिखाई दे दे। ठीक है, सो सी दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग। क्या मेरे को कुछ प्रिंट करना है कि यूजर को दिख जाए। सो मैंने एक कोड लिखा हुआ है, मुझे ये करना है। जिसने भी जावा पढ़नी शुरू करी थी सबसे पहली बार, उसने पहले ऐसा ही कुछ किया था, क्या कि यूजर को कुछ प्रिंट करना है। सो हमें पूरा का पूरा लॉजिक खुद से नहीं लिखना है। जावा में एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक इनबिल्ट चीज़ है जिसको यूज करके हम, एक फंक्शनैलिटी है जो कि इनबिल्ट है जिसको यूज करके हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं यूजर के लिए। ठीक है, सो वो फंक्शनैलिटी कैसे यूज करते हैं हम, उसके लिए हमें ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। system.out.println and whatever you want to print उसको अंदर लिखो। so, क्या लिखा मैंने, system.out.println ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें प्रिंट करना है हमने वो लिख दिया। ठीक है, एवरीबॉडी ओके विद दिस? ग्रेट। सो यहां पर हो क्या रहा है, सो बेसिकली दिस सिस्टम इज सम इनबिल्ट फाइल जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके अंदर आउट क्या है, सो आउट इज द आउटपुट जिसके अंदर हम कुछ डालना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यूजर को कुछ आउटपुट भेजना है, सो दिस इज द आउट दैट वी नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, सो इस आउट के अंदर हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन। ओके, एक चीज का ध्यान रखना होगा हमें, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये सेमीकोलन लगाया है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर वे ऑफ टेलिंग द सिस्टम दैट माई लाइन इज कंप्लीट। जैसे इंग्लिश में हम कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद एक डॉट लगाते हैं, सो ऐसे ही जावा के अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं तो हम एक सेमीकोलन लगाते हैं। दैट टेल्स द सिस्टम, ओ आई एम डन विद दिस स्टेटमेंट, यू कैन प्रोसेस इट। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग विद दिस सेमीकोलन। ओके, ग्रेट। ठीक है, चलो अब इसको चला के देखें, रन करके देखते हैं चल भी रहा है सही से कि नहीं चल रहा है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। टू रन दिस प्रोग्राम हमें ऊपर से ये जो प्ले बटन लग रहा है ना एक ग्रीन कलर का, वील हैव टू प्रेस दिस बटन। सो एज सुन एज यू प्रेस दिस you will see something in your console window. So this is the console window which we have. इसके अंदर हमारा वो टाइप वर्क आ गया है। जो भी हमें यूजर को प्रिंट करना था वो कंसोल के अंदर आता है। कंसोल क्या है, कंसोल इज अ प्लेस जहां से यूजर हमें इनपुट देगा और हम यूजर को आउटपुट दे पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विंडो। किसी को नहीं दिख रही हो अगर, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, हमें विंडो में शो व्यू में जाके कंसोल चूज कर लेना है एंड विल स्टार्ट सीइंग दैट विंडो। ओके, ग्रेट। ठीक है, चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सीखा है तो इसको और अच्छे से यूज करना सीखते हैं। सो लेट्स क्विकली पेस्ट इट ट्वाइस। ठीक है, इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं। सो मैंने सेम लाइन को दो बार कॉपी कर दिया है। ठीक है,
सो हमारे पास हेलो वर्ल्ड वाली एक लाइन थी, हमने उसको दोबारा कॉपी करके नीचे डाल दिया. दोबारा रन करते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को एंड इसको रन करते हैं. सो नाउ वी हैव 2 times वी गॉट हेलो वर्ल्ड. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड, राइट? सो देयर इज वन स्मॉल इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज हैपनिंग हियर. हमारा जो सेकंड वाला हेलो वर्ल्ड है, इट्स नॉट कमिंग एट द सेम लाइन एज द फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, इट्स कमिंग एट द सेकंड लाइन. ठीक है, क्या हमने एंटर दबाया क्या बीच में कहीं पे? हमने तो कुछ नहीं किया ऐसा. सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज, ये जो हम इनबिल्ट फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं ना, ये जो भी तुम इसको बोलते हो प्रिंट करने के लिए, वो उसको प्रिंट करता है और उसके बाद एक एंटर दबा देता है. उसके बाद जो भी नेक्स्ट टाइम आएगा वो नेक्स्ट लाइन पे आना शुरू होगा. ठीक है, सो देयर इज अ वेरिएशन टू दिस which is called system.out.print. So instead of println, you can just write print. And now when you will run it, the first one is a println, so that will put a new line at the end of it. So this hello world got followed by a new line. The second hello world, although we did not get a new line after the second one, so the third one came on the same line as the second one as well. ओके, सो 2 ऑप्शन है हमारे पास. प्रिंट एल एन यूज कर सकते हैं, प्रिंट यूज कर सकते हैं. प्रिंट एल एन से क्या होगा? नेक्स्ट लाइन. प्रिंट से क्या होगा? उसी लाइन के अंदर आ जाएगा. ओके, ग्रेट. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है. हमने बेसिक अपना एक जावा का पहला प्रोग्राम देख लिया है. ठीक है, कुछ चीजें देखते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट विल हैपन इज, मैंने तुम्हें भी कुछ समझाया है. सो मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पे ऐसा कुछ लिख पाऊं. If you use println, Java will put a new line at the end. Right? I want to write this. Why do I want to write this? I want to write this so that later on when you look at this code, you can figure out, oh अच्छा, हाँ ये हो रहा था, सही कह रहा है एकदम. Like ln लगा हुआ है तो println. So basically ln का लगा हुआ है तो new line पे जाना है. Right? I want to convey this message to you, but right now the problem is, जावा सोच रही है कि हम उसको बोल रहे हैं कि तू इस कोड को रन कर दियो, बट जावा के लिए तो ये जो हमने लाइन लिखी है, दिस इज एब्सोल्युटली इनवैलिड. सो हम चाहते हैं कि अपने कोड में कुछ कुछ लिख पाए जो हम लोगों के लिए तो दिखाई दे, बट जावा उसको इग्नोर कर दे. जावा जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर दे. सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू राइट 2/ बिफोर वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जावा विल बेसिकली इग्नोर दैट लाइन. जैसे ही मैंने 2/ लगा दिए, जावा ने वो लाइन इग्नोर कर दी है. ठीक है, सो मेरे को दिख रही है, तुम्हें दिख रही है, बट इफेक्टिवली जावा कंपाइलर को दिख नहीं रही है. वो सीधा उसके नीचे आ जाएगा. इनको हम कमेंट्स कहते हैं. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हम बहुत सारे कमेंट्स ऐड कर रहे होंगे अपने कोड के अंदर, बिकॉज दे मेक आवर कोड लॉट ईजियर टू अंडरस्टैंड. कोई भी पढ़ रहा होगा उसके लिए आसान हो जाएगा. ओके, थैंक यू.